So hi guys, my name is Nikhil. Today I'll be talking about IFT, okay, and what else is going on, okay. Right now we have around 71 days, okay. We have around 71 days for IFT, okay. 71 days. The exam will be on 24th of Jan, okay, 2021, and this is IFT, okay. IFT stands for Indian Institute of Foreign Trade, okay. And then we have 75 days left for CMAT, which will be on 28th Jan 2021. The reason I'm telling you about both the exam is because they are more or less the same. I mean, their topics are just same, okay. The only thing is IFT is little bit of harder version of CMAT, okay. That's the only difference, and both will be of 2 hours completely together, okay. The IFT के अंदर you have totally 3 campuses. One is IFT Delhi, okay, Delhi, ठीक है. इसका placement and everything is great. It is like top 10 colleges, okay. Then you have IIFT Kolkata, okay, which comes in cluster 2 colleges के अंदर आता है, ठीक है, with your baby IIMs and all those things. Actually it is better than new IIMs and baby IIMs, no doubt. IFT Kolkata, okay, just like SIBM and MIMS, तो उस cluster के अंदर आता है. Then IIFT Kankinada is like your baby IMS, okay. दिस इज आंध्रा का है, ये आंध्रा में है नया, तो ये दिस इज लाइक योर बेबी आईएम्स, ठीक है, जस्ट टैग के लिए, ओके. सो इसकी प्लेसमेंट का अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी. सो बट द गुड प्लेसमेंट, ये तो 20L प्लस जाता है, ठीक है, एंड ये भी 15 to 18L तक खींचता है ये, ठीक है. बोथ ऑफ देम गेट्स रियली गुड प्लेसमेंट, ठीक है. एज आई सेड, दिस इज इन द कॉम्पिटिशन ऑफ JB एंड ऑल बिग IIMs, एंड दिस इज इन द कॉम्पिटिशन ऑफ SIBM एंड NMIMS, ठीक है. IFT कोलकाता, कंकीनाडा थोड़ा छोटा उसमें आता है, ठीक है. तो what can be done if all of you have given up on CAT and SNAP भी काफी लोग कह रहे हैं I'm unable to do, sir, there are certain things in SNAP we are unable to find. So there is just one last chance we have before CET though is the last chance, but before that we have one more chance, which is concentrate on IFT and CMAT, because both of their topics are more or less the same, ठीक है, almost same. बस वो थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात आ जाती है, ठीक है, दोनों का सेम ही होता है. So you can start the preparation for IFT and you see after 4 days, when 24 के बाद, जब 3 दिन बाद जब एग्जाम होगा, I mean 28 जब 4 दिन बाद एग्जाम होगा, तो you will be ready for CMAT as well. So right now you can keep these 2 exams, the IFT and CMAT, in your arsenal, and then you can proceed. This is what I'm trying to imply right now, ठीक है. Just a second guys, okay. So okay, तो ये अभी समझते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है. टाइम के नाम पे 17 डेज है कल से लेकर. 17 डेज है नवंबर में, दिसंबर में 31 डेज है, एंड जनवरी में 23 डेज है. इनको अगर आप पूरा करोगे, कंप्लीट ऐड करोगे, यू विल गेट 71 डेज. in 71 days what you can do, many of you are like sir cat give up नहीं करना चाहते हैं for certain reasons. I respect that, okay. If you don't want to give up cat, it's your wish, okay, no problem, okay. So what can be done? So you should do something in these weeks, okay, which is not going to affect on cat. ऐसा कुछ करो कि cat भी हो जाए और ये भी हो जाए, which is known as getting comfortable. तो कुछ ऐसी चीज करो कि आपका कवर भी हो जाए टॉपिक्स और सब कुछ हो जाए. तो लेट्स सी व्हाट IFT का फर्स्ट टॉपिक्स आर, ठीक है. एक सेकेंड, या तो IFT का कट ऑफ इज 138 140 इश जाता है every year. Our target will be 150. It's always better to score 150. What if the paper is tougher this year? What if the paper is easier this time? कुछ कह नहीं सकते. Everyone is just speculating. So let's just come to a conclusion कि ज्यादा 150 का एक target score set करते हैं, ठीक है, score set करते हैं, and you will be fine. Okay, so that is one thing. So let's just talk about what things are. Okay, so this is your section 1. Okay. Oh, I'm sorry. Section 1 has VARC, which is 35 questions, 3 mark per questions. This is your target. If you see 20 is nothing but your questions, and 60 is the respective score if you do all the 20 questions correct. ठीक है, तो ये चीज आ जाती है इसमें. तो why we are saying 20 is because we need to play very safe. Neither we should be good in quant, neither we should be bad in GK. ठीक है, ये सिचुएशन होने वाली है. तो एक सेकेंड गाइस, क्या क्वेश्चन आ रहा है.
सेक्शनल कट ऑफ मोस्टली नहीं होता है, मोस्टली सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है. इन केस सुरेंद्रन, इफ देयर इज एनी चेंजेस विल लेट यू नो. ओके, मोस्टली इट डजंट हैपन. द ओवरऑल कट ऑफ इज दिस. ओके, एंड मैं बता देता हूँ एक और चीज, एक सेकेंड. ये देख लो यहाँ पर एक सेकेंड. Yeah, this is the cutoff for general, which is 140. OBC and SC के लिए 120, and other EWS, ST, PWD के लिए 90 होता है. ठीक है. This is for IIFT Delhi. Okay. This can go down for not for Kolkata, but IIFT Kankinada के लिए नीचे जाएगा. It might go fall to 80 also for ST when it comes to IIFT Kankinada. Okay, but it doesn't mean that converting in IIFT Kankinada will be easy. No, it might be tougher as well. You don't know. Speculation is something you shouldn't do. That is one thing. Okay, तो cetking.com/IIFT में जाओ, ये सारी information आपको वहीं पे मिल जाएंगी. Okay, coming back to the main important thing, section 1 VARC. This is a place where you should target the questions. Okay, 20 number of questions you need to do right. And when I say 20 number of question, I mean accuracy 100% रखना है. मुझे 70%, 20%, 90% एक्यूरेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई वांट 100% एक्यूरेसी. इवन दो तुम 20 क्वेश्चंस की या 10 क्वेश्चंस भी करो, एटलीस्ट जो कर रहे हो सही करो. दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके गाइस, एक सेकेंड यार, अभी ये कंप्लीट कर ले हम लोग. गाइस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. एच, यू कैन आस्क टू सर अबाउट दिस. ठीक है, आई डोंट नो. मैं कभी भी इन चीजों में बात नहीं करता ज्यादा. ठीक है. ओके, सो ओके, तो ये एक चीज हो गई. ठीक है. देन DILR में अगेन 12 क्वेश्चंस. ठीक है. सेक्शन 3 क्वांट 10 क्वेश्चन. मेनी ऑफ यू आर वेरी बैड इन क्वांट और यू आर सेइंग सर वी आर स्ट्रगलिंग इन क्वांट. इन दैट केस आई वुड से क्वांट के लिए कम टारगेट करो, जिस चीज में ज्यादा कर सकते हैं. यहां पर इंग्लिश और DILR डुएबल होते हैं, ज्यादातर डुएबल होते हैं. DILR तो काफी डुएबल होते हैं. ठीक है. जीके एंड क्वांट कैन बी डेंजरस एट टाइम. ठीक है, तो उसमें ज्यादा स्ट्रगल ना करके, इट्स एवरीवन्स अप टू ईच एंड एवरी पर्सन कि आपको कौन सा क्या टारगेट करना है. इन माय हम्बल ओपिनियन, और सर ने जो हमने डिस्कस किया था सबने मिलके, ये बेस्ट है. ठीक है. जीके मेनी ऑफ यू वोंट बी एबल टू डू इन द लास्ट स्टेज. ठीक है. सो कीपिंग जीके लेस मार्क्स, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटैक विल बी अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, दैट इज वन थिंग. Guys, आप लोग के क्वेश्चन, yes it will be easier than CAT, but speculate करना अगेन रौनक, it won't be a good thing. Okay, ठीक है, ये हो सकता है. देखो यार, इजी होगा टफ होगा ये तो एग्जाम डे पे ही पता चलेगा. हम स्पेकुलेट करके कुछ कर नहीं सकते हैं. द थिंग इज, बात आती है, इज इट डुएबल? यस, इट इज डुएबल. दैट इज द रियलिटी. VARC इज क्वाइट डुएबल इन IIFT. DILR इज क्वाइट डुएबल. ठीक है. क्वांट एवरीवेयर इट्स टफ, नो डाउट. ठीक है. saying कि सर क्वांट इजी आएगा टफ आएगा, स्पेकुलेशन. यू कांट डू दैट, यू कांट फॉलो दैट. ओके, ठीक है. ब्लैक बुक्स आर इनफ. आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ब्लैक बुक्स, you do lot of question paper, last year question paper करो, and sectional test. okay, CET King में हमारे पास ये देखो, अभी अगर आप लोगों को दिख रहा है टॉपिक वाइज पे, RC हो गया, वर्बल हो गया. ठीक है. वर्बल के लिए इफ यू आर सेइंग ना सर वो ग्रामर करना है, ग्रामर एंड ऑल, तो देखो यहाँ जाके मिक्स टेस्ट, वो कैप टेस्ट, ये हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, वर्ड यूसेज, वर्बल एनालॉजी, एनालॉजी इज आल्सो देयर, सो यू कैन डू फ्रॉम हियर एज वेल. ठीक है, ये है. ठीक है. सो guys, आप लोग रुक जाओ अपने क्वेश्चंस को लेके. we'll just talk each and everything in detail. Okay, so first we'll start with VARC. what should we do so that we can get 20 marks in VARC, sorry 20 questions correct in VARC. ठीक है. तो VARC के अंदर आपका ये टॉपिक्स आते हैं, या RC, एनालॉजी, पैराजंबल्स, ग्रामर, वोकैब, इडियम्स. ठीक है, ये सब टॉपिक्स आते हैं. ओके. RC कितना करना होगा, द बिगेस्ट क्वेश्चन. व्हेन इट इज अराउंड 16 मार्क्स, ठीक है, आई वुड से उसका हाफ करना विल बी अ बेटर ऑप्शन. ठीक है. सेइंग कि नहीं सर आई विल डू RC, जब RC आती है ना सामने आपके, आपको पता है कि कितना डुएबल होता है और कितना डुएबल नहीं होता है. सो स्टेटिंग कि नो आई विल डू 16 आउट ऑफ 16 RC इज स्टुपिडिटी. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द फुल RC, यू टारगेट ओनली हाफ ऑफ द RC. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सॉरी गाइस, रब करने में टाइम लग जाता है. ठीक है. ओके, सो RC इज 16 मार्क्स. आई वुड सजेस्ट इन VARC, ठीक है, यू टारगेट ओनली 8 क्वेश्चंस. ठीक है, 8 प्रॉपर
क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी, दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। बचे कितने? 12 मार्क्स बचे, ठीक है। 12 क्वेश्चंस बचे, ओके। एनालॉजी, सर एनालॉजी कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? ये रहा वर्बल एनालॉजी, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। अदरवाइज आप लोग क्या कहते हैं, अपना पोर्टल में जाके पढ़ भी सकते हो, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट देख लो कितने सारे, ये देखो 3 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इनको करो। और भी बाकी चीजें उनको करने की कोशिश। आरसी एंड ग्रामर हो गया, देखो आरसी ग्रामर, सो मेनी थिंग्स यू हैव, जस्ट फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर इट इज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल कम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1, टेक्स्ट समरी, एवरीथिंग इज गिवन गाइस। आपको जस्ट अपना पोर्टल खोलो एंड स्टार्ट सीइंग थिंग्स, यू विल फाइंड, यू विल डिस्कवर मेनी थिंग्स, ओके। सो कमिंग बैक टू ओवर हियर, पैरा जंबल्स। पैरा जंबल गाइस ऑप्शन दिया होगा, नो नीड टू वरी, इजी पीजी। एनालॉजी अगेन सेम थिंग, तो इनको 2-2 मार्क्स और ले लो आप, ठीक है। सो पैरा जंबल विल बी अगेन 2 क्वेश्चंस एंड एनालॉजी विल बी अगेन 2 क्वेश्चंस। कितना हो गया टोटल? 12 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। देन ग्रामर, वोकैब, ओके, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर बोथ डिबेटेबल एट द सेम पॉइंट, ठीक है। दिस इज वन थिंग। idioms you can do it black books, so far I feel black books are the safest option when it comes to idioms, ठीक है। तो idioms को भी 2 क्वेश्चंस दे दो एंड ब्लैक बुक्स more than enough, ठीक है। ब्लैक बुक्स आर more than enough for idioms because they will ask you fill in the blanks type, या सेंटेंस दे देंगे और सेंटेंस के बीच में हाईलाइट करके पूछेंगे what meaning it is making the sentence, ठीक है। तो that they will ask you, ठीक है। तो वो एक चीज हो जाती है, ओके। तो idioms इसी तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी अराउंड कितना, 6 हो गया, 14 क्वेश्चंस हो गए। बाकी का वोकैबुलरी एंड ग्रामर है। FIB में कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी वोकैबुलरी बेस्ड ऑल्सो, इट कैन बी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पूछ सकते हैं आपका जो प्रपोजिशन में है। इवन दे कैन आस्क यू व्हाट इज इट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल इन दिस, ठीक है। ग्रामर में भी हो सकता है, FIB में भी हो सकता है। वोकैबुलरी वर्ड पार मेट इजी बुक, ठीक है। इफ यू कांट डू, जस्ट फोकस ऑन ग्रामर एंड दिस। वेयर टू फाइंड ग्रामर, सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज आवर पोर्टल के अंदर जो भी वीडियोस हैं वो देख लो, उतना काफी है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। डू दैट, ओके। देन यू हैव, तो उस हिसाब से यू कैन स्कोर अराउंड कितना बचा, 6 क्वेश्चंस मोर, ठीक है। ग्रामर हो गया, ठीक है, ग्रामर हो गया। और ये जो एक लास्ट पार्ट था आपका क्या कहते हैं, वोकैबुलरी एंड FIB, ओके। तो यहाँ से आप 6 क्वेश्चन और अटेंड कर सकते हो। गाइस थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग टू कट सम स्लैक in mathematics and GK, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी होगी। and if you don't want, sir, I don't want to do grammar and vocabulary, then put more effort in GK and then in math. Somewhere you have to make an effort, ठीक है। you can't just, yeah, negative marking is there, that's why accuracy ना, that's why accuracy, ठीक है। that is one thing, तो ये संभाल लेना इस चीज को। गाइस मेहनत करनी पड़ेगी किसी एक सेक्शन में, बिकॉज आप बाकी सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, दैट इज व्हाई यू हैव टू keep all these things in your mind, okay। so that is one thing। तो यहाँ पर similarly आपको बन जाएगा आपके 20 marks, okay। coming over here, DILR, okay, this is somewhere I would suggest कि अगर आप 15 questions भी कर लोगे ना, that is enough। तो क्या करने की कोशिश करो, VARC and DLR में mix and match करो। so basically you have to attain 32 questions, right। 32 को 15 या 16 में divide करके you can work as well, okay। DLR में भी you can get score। so DLR में जो topics आएंगे वो होंगे ये, it is a combination of both DI and LR, which is bar graph, table, pie chart, all these things, ठीक है। even includes what you say, your traditional traditional LR, which is your blood relation, direction and all these things, ठीक है। linear के अंदर you will get that linear sitting arrangement, okay। set theory, इनपुट आउटपुट सीरीज एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये होगा आपका, ये थोड़ा सा कंसेप्ट भी होगा और कैलकुलेशन भी होगा दोनों के अंदर। सिंस देयर इज नो कैलकुलेटर, ऑब्वियसली यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी अ कैलकुलेटिव वन, ठीक है। ये सारा जो DI के अंदर है, और ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो 16 करके डिवाइड कर लो, ठीक है, आउट ऑफ 32, एंड देन यू कैन प्रोसीड। अदरवाइज जो सर ने लिखा है यहाँ पर टेबल में उसको भी प्रोसीड कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज उसके लिए आपको वोकैबुलरी और ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर करना पड़ेगा थोड़ा। वो अगर हटाना है देन यू हैव टू वर्क हार्ड ओवर हियर, ठीक है, विच इज योर
DILR, ठीक है. आफ्टर यू आर डन विद DILR विल मूव ऑन टू मैथमेटिक्स. गाइस मैं अभी कैलेंडर वाइज भी बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है. इसके अंदर अर्थमेटिक आता है. सबसे बड़ा क्वेश्चन 13 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के कहां से आएंगे. अर्थमेटिक तो बहुत बड़ा चैप्टर है, नॉट रियली. ओके, अर्थमेटिक के लिए वापस आप यहां पर आ जाओ. ये कैट के हैं बाय द वे, ठीक है. इसके अंदर जितने टॉपिक होते हैं वो सब एग्जाम यहीं से लेते हैं. ओके, अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, SICI, average, profit and loss. These chapter with including time, speed and time and work. This they will ask for arithmetic for 13 marks. Ratio, percentage के लिए they can go to 2 questions as well. Plus 2 questions कर सकते हैं. That's why it will come around 13 questions. ठीक है. For क्या कहते हैं, अर्थमेटिक हो जाएगा आपका, ठीक है. क्वांट की बात करें अगर हम, तो अर्थमेटिक हो जाएगा आपका पहला, ठीक है. ठीक है, ये इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 13 टू 12, इट कैन गो टू 12 टू 13 भी हो सकता है, ठीक है. फिर आता है मॉडर्न मैथ. ओके, मॉडर्न मैथ कमजोर है यहाँ पर थोड़ा, ठीक है. मॉडर्न मैथ में उतना कुछ नहीं आता है. PNC एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है. दे डोंट आस्क यू लॉग्स, दे डोंट आस्क यू ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल दीज थिंग्स. ये बहुत ज्यादा पूछते हैं. सो इफ यू आर गुड इन PNC एंड प्रोबेबिलिटी, काइंडली डू इट, अदरवाइज लीव इट. अर्थमेटिक किया, फिर थर्ड आपका आएगा क्या कहते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है. ज्योमेट्री में मेंसुरेशन कर लो, ठीक है. मेंसुरेशन के अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर सर्टेन. मेंसुरेशन के अंदर आता ही आता है इतना, ठीक है. ये देखो ज्योमेट्री 6 क्वेश्चंस, तो 2 से 3 अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम व्हाट यू से मेंसुरेशन, ठीक है. मॉडर्न मैथ इज कमजोर, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो. दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट 10 मार्क्स इन योर क्वेश्चन Q&A. ओके, QA के अंदर इसलिए 10 किया हुआ है हम लोगों ने, बिकॉज वी नो इट इज टफ. बट मेक श्योर करना आप दो चीजों में डिवाइड कर लेना. जैसे सेक्शन 1 and 2 को 32 क्वेश्चंस करके 16 कर दिया बेस्ड ऑन योर व्हाट यू से कंफर्टेबलनेस. उसके बाद सिमिलरली सेक्शन 3 के अंदर आई वुड सजेस्ट 10 क्वेश्चंस ही करो. ट्राई टू डू अराउंड 5-6 क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थमेटिक. उसके बाद मॉडर्न मैथ और ज्योमेट्री में मेंसुरेशन निकाल के, that's it, 10 questions done and done. Then we'll come to the last part, which is GK. Now VARC, we know that the majority, or we can say the percentage RC is having. What can be done so that RC भी हो जाए, GK भी हो जाए? Let's come to the calendar part. Okay, तो यहाँ पर आ जाते हैं. एवरी डे क्या करना है अब मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है. विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्लास टुडे, ठीक है. ये टॉपिक्स तो हम डिस्कस करते ही हैं हर क्लास में, ठीक है. तो गाइज एक सेकेंड, आप लोग क्वेश्चंस रुक जाओ अपने, ठीक है. लेट्स जस्ट फिनिश, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर ही करेंगे. ओके, वी हैव अराउंड 71 डेज रौनक, 71 डेज है एंड 2 आवर्स का एग्जाम है, तो यू हैव टाइम यार. कंपैरेटिवली कैट स्नैप में अभी टाइम नहीं बचा है इतना. सो जस्ट नो 2 आवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. और मॉक्स तो लिखना ही है, वो मैं बता रहा हूँ. आई एम कमिंग एवरी डे. लेवल ऑफ LR इज स्टैंडर्ड. राज, लेवल ऑफ LR इज एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड. CMAT का बहुत कम होता है लेवल, ठीक है. अगर देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, IFT ट्राई करने का है अगर CMAT क्रैक करना है तो, क्योंकि IFT की जो वो है क्या कहते हैं अपना टफनेस, वो थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है CMAT के कंपैरिजन में. वंस यू फेल इन IFT, okay, if you do good in IFT, well and good, that's the ultimate thing. But खुदा ना खास्ता you fail in IFT, CMAT बचा लेगा तुमको, ठीक है. You can still make it to JB, you can still make it to Jimpanji, KJ Somaiya and other good colleges, even Sidnam, ठीक है. तो उस हिसाब से मेरा पूरा प्लानिंग चल रही है 71 and 75 days की. That's what I'm trying to explain you over here, ठीक है. तो 13 से लेकर 30th तक अभी क्या करना चाहिए इन मॉर्निंग, आई वुड सजेस्ट, ठीक है. आप लोग करो ये काम, RC एंड GK. RC एंड GK करना है. GK के अंदर दे आस्क यू ओनली 2 थिंग्स, ठीक है. वन इज करंट अफेयर्स एंड अनदर इज स्टैटिक. ओके, 20 मार्क्स का होता है ये, ठीक है. टोटल योर टारगेट इज 6 मार्क्स. ओके, सो डू करंट अफेयर. स्टैटिक कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी हिस्ट्री से पूछ लेंगे, क्या कहते हैं कथकली कौन सी क्या कहते हैं स्टेट का डांस है, सो ऑन, कुछ भी पूछेंगे, ठीक है. स्टैटिक तो कुछ भी आता है. करंट अफेयर्स एटलीस्ट यू हैव सर्टेन थिंग्स known to you if you are reading newspaper.
इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, कुछ नहीं, हमारे उसमें जाओ, पोर्टल में जाओ, ठीक है, यहाँ आ जाओ पोर्टल के अंदर, शांति से पोर्टल में जाओ, जीके अपडेट्स आ जाओ। इफ यू हैव द ऐप दैट इज मच बेटर। यहाँ वाला, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस वन, नवंबर, ये जो लिखता है, यहाँ क्लिक करोगे एक कैलेंडर आएगा। दैट कैलेंडर में यू कैन गो बैक डेट्स में जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आई वुड से गूगल, यूट्यूब में जाओ, राइट, करंट अफेयर्स मंथली, ठीक है। जैसे नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने टाइप किया यूट्यूब के अंदर, ठीक है, तो करंट अफेयर्स मंथली में आपने नवंबर ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें जो भी वो वीडियो में इंफॉर्मेशन होगी उसकी नोट मेकिंग कर लो, ओके, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। आफ्टर दैट, जस्ट गेटिंग द जिस्ट ऑफ दोस इंफॉर्मेशन, स्टार्ट रीडिंग नवंबर का ऑल इंफॉर्मेशन वाया अवर आइदर पोर्टल के अंदर या हमारे ऐप के अंदर। ऐप इज लिटिल बेटर, ठीक है। रीड करना शुरू करो। what will happen, what will be the result of that? You will improve your RC, which is your reading skill, and GK सिमिलरली, ठीक है। नोट मेकिंग, इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी वीडियो देखने से, आपकी जिस्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो डीप में नहीं पूछेंगे इतना, ठीक है। और आपके साथ साथ रीडिंग भी हो जाएगी। रीडिंग इज समथिंग, इट इज नेसेसरी, ओके, रादर देन सॉल्विंग आरसी, रीडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यू कैन फॉल फॉर जीके कंप्लीटली, और उसके बाद आरसी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। या फिर आप एवरी डे 1.5 आवर्स, ठीक है, या तो आरसी कर लो और फिर वीडियो देख लो जीके की। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर, आई कैन नॉट डू जीके रीडिंग दैट मच, तो फिर देन यू प्रैक्टिस आरसी फ्रॉम ब्लैक बुक, ठीक है। आरसी फ्रॉम ब्लैक बुक प्रैक्टिस कर लो कंप्लीटली, एंड उसके बाद जीके जो होगा आपका, वो आप सिर्फ वीडियोस देख लो, ठीक है। मंथली सीए, ओके, मंथली करंट अफेयर्स। गाइज अगर एक सेकेंड गाइज, क्या हो गया? Okay, Ria, I'll explain you later. Okay, yeah, it's 28th. Okay, Swarima, it's 28th. Most probably it's on 28th. ठीक है, CMAT. Okay, so that is one thing. So ये चीजें ध्यान में रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आरसी कर लो ब्लैक बुक से, जीके कर लो, वीडियो, मंथली सीए। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग गुड, आई वुड सजेस्ट आप जीके की प्रैक्टिस करो और रीडिंग की हैबिट डालो वाया आवर पोर्टल, ठीक है। सो यू रीड एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आर्टिकल्स, इट विल हेल्प। But if you don't want to do that, you have the second option, which is this one, ठीक है। ये second option है, ये first option है, okay। So this is what you are supposed to do, okay, and that is how you are going to target GK and RC, ठीक है। Do this for this month alone, ठीक है, ये करो, okay। Coming to the places where we have to struggle and get marks, okay, ठीक है। वो कौन सी जगह है जहां से मार्क्स हमें अटेन करना है सबसे ज्यादा, which is DILR एंड VARC। इसको कब छोड़ना है? इसको पूरा दिसंबर के लिए छोड़ना है, ठीक है। DILR देन क्या कहते हैं, VARC, ओके। व्हाट नीड्स टू बी डन बेसिकली एवरी डे, ठीक है, वन सेट ऑफ DI। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू पाई चार्ट्स कर लो, ये कर लो, कुछ भी, एनीथिंग, एवरी डे 1 डे DI सेट। मॉर्निंग में कॉफी लेके बैठ जाओ और एक एक सेट सिर्फ DI का सॉल्व करोगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, ठीक है। शाम को करो LR में एनीथिंग यू वांट टू डू, ट्रेडिशनल LR, ठीक है, ट्रेडिशनल LR करना है तुमको, अरेंजमेंट्स करना है तुम लोगों को, anything you want to do you can do that। DI का एक पोर्शन रखो, LR का एक पोर्शन रखो, VARC का ग्रामर या कुछ जो भी करना है आपको, पोर्टल में जाने का, सिंपल ऑनलाइन टेस्ट जाओ, ठीक है, यहाँ ऑनलाइन टेस्ट में जाओ, ये हो गया आपका टॉपिक वाइज में ये सब है, वो कैब है, वर्बल है, RC है, ग्रामर है, निकालो, करना शुरू करो। तुम्हें थोड़ा सा यू वांट सम काइंड ऑफ हेड्स अप, जस्ट गो टू अजाइन कोर्स, ठीक है। अजाइन कोर्स में जाने का, ई क्लासेस बेसिक्स में जाओ, ठीक है, ई क्लासेस बेसिक में जाके लाइव वर्बल, ओके, ओवर हियर जो भी तुमको ग्रामर, वो क्या भी, देखो ग्रामर रूल्स एंड इडियम्स, all these things are available। all you need to do is open these videos, watch them, go back to your sectional test, practice them, that's it, nothing else। all you need to do is effort, ठीक है। yes you can do that Raj, yes। so ये चीजें आपको अपने आप, गाइज अपना पोर्टल खोलो और उसको करो एक बार एक्सप्लोर, आप लोग को पता चलेगा कितना कुछ दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट स्ट्रैटेजाइज, ओके। सो इन दी दिसंबर मंथ आपको यही करना है। आई वुड सजेस्ट
consume as much as time as possible in DILR and VARC for दिसंबर में पूरा करने का है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, कैट की जो जो प्रिपरेशन कर रहा है वो DILR और VARC नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रामर है इसमें और प्लस इसमें ट्रेडिशनल LR है, तो कैट वाली जो पब्लिक होगी वो नहीं करेगी, दे विल गो फॉर ऑल DILR कैट सॉल्विंग वाला, दे विल नॉट डू द ट्रेडिशनल DILR एंड whatever is given LR with respect to IFT, ठीक है। So for those public who are doing CAT also, तो मैथ्स जो है यानी क्वांट को शाम को स्टार्ट कर सकते हो, एनी टॉपिक गाइस, 2 दिन पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाइस, टोटल 9 नहीं, अराउंड 8 सब्जेक्ट्स, मतलब 8 चैप्टर्स कर सकते हो आप totally 8 chapters you can do of math every 2 days if you pick, and उसके साथ साथ GK and RC की तैयारी करो. I am just asking you to spend around 4 hours, guys. The more closer we are to exam, we have to spend more time. ठीक है, if you are not starting from the very beginning, so 4 hours you spend, okay, that will be a great things for you. So you will do GK, you will do RC, and you will do your quant. That is why we have asked you to do 10 questions in quant, ठीक है, इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चंस हमने मार्क किया है, क्योंकि हमको पता है कितना पॉसिबिलिटी है मंथली, तो इतना टारगेट आपका नवंबर में। दिसंबर में DILR VARC जितना हो सकता है मैक्सिमम सुबह शाम कंप्लीट कर दो इसको, ठीक है। ओके, यू कैन स्किप what you say RC also and concentrate on GK, ठीक है, बट GK में भी इतना नहीं, GK थोड़ा पढ़ लो क्योंकि हमने सिर्फ 6 मार्क्स बोला है इसके लिए, और RC पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये कर लेना दिसंबर में। जनवरी में अब स्टार्ट क्या करना है, तो 23 को मेरा खत्म होगा, ठीक है, जो भी मेरे को करना है, तो फर्स्ट से लेकर 23 में व्हाट वी हैव टू डू इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस 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 सिद्धार्थ, इट इज पॉसिबल। सो फर्स्ट से लेकर 23 तक आप क्या करोगे, मॉक्स। Once you are done with the topics, and if you are also not done with the topic, all you are going to do is till 23 mocks, ठीक है। मॉक्स ही करने का है मेरे को, IIFT का और CMAT का सिर्फ मॉक करना है, ठीक है। मॉक करो, एनालिसिस करो, जो जो टॉपिक्स नहीं हो रहा उनको रिवाइज करो, सेम डे एवरी डे रिपीट दिस हैबिट, यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। Problem is, abhi snap ka many people are saying that it is 1 hour, so it will be easy. How do you know it is easy? How do you know it is tough? For example, abhi मैं एक example देता हूँ आपको यहाँ पर। IFT में if you see GK is just 1.5 marks, so I would not suggest spend that much time on GK. But again, it is a speculation. I cannot be sure on this. Last time, 1.5 marks was in LR and in English, 1.5 marks per question. And in math, it was 1 mark. So technically, we all engineers knew that math करेंगे 1 mark का दिया हुआ कम परसेंटेज है तो easy questions आएंगे. It was never like that. That part was very lengthy and tough as well. In fact, all the things were tough. कोई भी चीज easy नहीं थी. हाँ, pick and choose करना था तुम लोगों को. लास्ट टाइम जो स्नैप का एग्जाम था, सो स्पेकुलेशन तो बहुत है कि सर स्नैप 60 मार्क्स का, आई मीन 60 मिनट्स का है, इट विल बी इजी. नो, इट इज योर स्पेकुलेशन, योर अजम्पशन, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन दैट वे, ठीक है। मैंने भी स्पेकुलेट किया था, हाँ यार 1 मार्क होगा, सो मैथ इट विल बी इजी. मैथ बिकेम वेरी टफ. आई जस्ट सॉल्व्ड ओनली 5-6 क्वेश्चंस, और बाकी मैंने एलआर और उसमें दम लगा था, तब जाके 97 परसेंटाइल आया. लेकिन अगर मैं उस समय ध्यान से सोचता और ये स्पेकुलेशन हटा देता, आई वुड हैव गॉन टू 99 आल्सो, पर नहीं हो पाया क्योंकि हमने अज्यूम किया. सो don't assume that snap will be easy, don't assume that IFT and CMAT will be easy. Just understand, if I do IFT, पक्का से CMAT निकलेगा. That is a bonus. That is what you have to understand. That is what you need to follow. ठीक है, that is all. और कोई फर्क नहीं पड़ता. Take it easy, okay? हाथ से चला गया स्नैप, हाथ से चला गया कैट, कोई बात नहीं. We still have fighting chance. 71 and 75 days are good. अभी भी you have time. Riya, if you are not confident with Snap, नहीं preparation की है, you can switch to IFT. And if you are a non-engineer, this is where things will go good for you. I'll tell you why. अभी पता चला है when the like जब तुम्हारी कॉल आ जाएगी, when you clear the cutoff and everything, when you'll get the call, okay. Yes, Tejasvi, do it now, okay? Because CMAT and IFT भी आप कर सकते हो.
ओके अगर आपसे नहीं, इफ यू आर अनेबल टू मेक एनी इंप्रूवमेंट इन दीज एग्जाम कैट एंड स्नैप, व्हाट इज द पॉइंट? ठीक है, इट इज ऑलरेडी टू लेट. I cannot tell you that in 10 days you can get 99 percentile. I cannot give you that wrong hope, right? I would like to give you the practicality, which is कि आप लोगों से अभी नहीं हो पा रहा, focus on other exams, focus on this. People ask me, sir cat बहुत tough हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा where you are from? Sir I am from Bombay. मैंने कहा आंख बंद कर CET लिख, चुपचाप से prepare for CET. That's it. So there are certain things that you have to understand. By writing cat, it doesn't make you superior or inferior. Okay, you have to understand what exam is right for you, how you can get to the main, that is like तुम्हें वो क्या कहते हैं, एडमिशन कैसे होगी, ये तुम्हारा मेन वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, कंक्लूजन होना चाहिए. ठीक है. सो यस, एनमैट गाइस अभी तो काफी अच्छा आ रहा है. एनमैट के स्कोर्स बहुत लोगों के 240 220 जा रहा है. लास्ट टाइम द कट ऑफ वाज अराउंड 207. ठीक है, मेरा तो 216 आया था, सो आई मेड इट. सो अभी अगर लोगों के 240 250 जा रहा है, सो आई वुड से कट ऑफ विल कम अराउंड 215 प्लस या 210 प्लस. एक बार तो 212 भी गया है कट ऑफ, सो दैट इज ऑल्सो वन चांस. ठीक है, सो यू डू ऑल दीज थिंग्स. एनमैट कर सकते हो. एनमैट तो क्वाइट ईजी है. ठीक है, अडेप्टिव इज जस्ट नॉनसेंस, वो सिर्फ डराने के लिए, वैसे वो सब आसान है, वो बस तुम्हें लड़ना आना चाहिए और कुछ नहीं. Yeah, that is one thing. So find out what is right for you and then proceed. Okay, just don't get scared and all. और यहाँ पर इस मंथ में जनवरी में सिर्फ मॉक देना और कुछ देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज व्हाई नॉन इंजीनियर्स को जाना चाहिए. आफ्टर यू आर तुम्हारा कॉल आ जाएगा. ठीक है, तो तुम्हारा 40% विल बी योर IFT का एग्जाम. ठीक है, 40% विल बी योर IFT का एग्जाम. And again 30 to 40% will be your this thing, क्या कहते हैं अपना 30% not 40, 30 to GDPI. ठीक है, GDPI. ओके, बाकी का जो लेफ्ट आउट पोर्शन है उसके अंदर अराउंड 7% नॉन इंजीनियर फीमेल को वो परसेंटेज मिलेगा जस्ट बिकॉज दे आर नॉन इंजीनियर फीमेल. एंड बॉयज को क्या कहते हैं, नॉन इंजीनियर मेल को 5% मिलेगा. ठीक है. सो अगर आपका IFT में अगर 99 परसेंटाइल, सॉरी नॉट 99 परसेंटाइल, 140 इज इक्वल टू 40% मान लेते हैं, और आपका कुछ स्कोर आया से 125 या समथिंग, सो यू गेट अराउंड 35%. नो वरी, तुम्हारे पास ये नॉन इंजीनियर का और ये जो फ्री स्कोर है ये तुम्हें मिल जाएगा. सो दिस विल हेल्प यू boosting your chances to get into IIFT. Okay, in the what is after the call has been received to you. तो GDPI में तो तुम्हें परफॉर्म करना है, लेकिन तुम्हारे पास अगर IFT गलत हो जाता है या some performance go down, you still have this free things with you, freebies with you in order to support you. ठीक है, फॉर इंजीनियर दिस इज 0%, फॉर जनरल इंजीनियर में दिस इज 0%. कुछ नहीं मिलने वाला उन बेचारों को, तो उनकी तो बहुत बुरी हालत है. तुम्हारे पास ये 7% एंड 5%, गाइस आई हैव सीन पीपल 1% से उनकी जिंदगी बदली है. सो दिस इज दैट थिंग, दिस इज द रियलिटी. एंड दे आर टेकिंग द इनटेक ऑफ नॉन इंजीनियर्स आर मोर इन IFT now in IFT they have increased, okay, by taking more number of people. So that is one thing. Yes Anjali, so that is one biggest advantage for non-engineers who are struggling with CAT and SNAP, are like math give up, do it IFT and CMAT. That's it, that's the bottom line. Okay, so guys that's it. ठीक है, IFT का यही होगा और कुछ ज्यादा है नहीं, बस बाकी ये सब जो भी स्ट्रैटेजी बता दी एक बार देख लेना. ये देख लो, IFT दिल्ली की इतनी सीट्स हैं, 220 सीट्स हैं. IFT कोलकाता 140 सीट्स एंड 60 कंकी नाडा, चलो ठीक है, व्हाटएवर द नेम इज. ठीक है, तो टोटल अराउंड कितना हो गया आपका, कितना 420 सीट्स है. मोर देन इनफ गाइस, 420 सीट्स हैं. और अराउंड देखो, जैसे यहाँ देख सकते हो, कैंडिडेट हु अपीयर 50,000 सेलेक्ट अराउंड 2,000 के करीब होते हैं. And 420 seats, it's not 440, sorry, 420 seats hai. You still have fighting chance. Once you are shortlisted and the non-engineer people, you actually have a good chance. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. And if you're from good colleges like Shri Ram and all, yes, Shruti, you have what you say, negative marking. That's why concentrate more on accuracy rather than attempt. Okay, so that's it guys. Now I'll just answer your questions. जितना लगेगा देखते हैं. Okay, so that is all for the class. If you are unable to do the other exams, kindly concentrate, because these two exams are of same type.
सो IFT के साथ साथ बोनस CMAT लग जाएगा, JB भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। एंड वी होप पीपल हु आर गुड इन जीके, कोई टेंशन ही नहीं है तुम लोग को, ठीक है। चलो विल जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग।